السلام علیکم پیارے ناظرین، جہاں بھی رہیں خوش رہیں بات رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 5 مخصوص دن اور کس لیے احتیاط کی ضرورت ہے، ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اپنے برج کے متعلق تمام تفصیلات جانیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری مزید ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ محترم بہنوں و بھائیوں، یہ ضرور یاد رکھیے گا، مولا کریم آج ہم سب کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو بخش دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ تو اب ہم چلتے ہیں ویڈیو کے اصل موضوع کی طرف کہ مارچ 2025 کا مہینہ زندگی کے مختلف پہلوؤں، کیریئر، محبت، دوستی اور کاروبار میں اہم تبدیلیاں اور مواقع لے کر آ رہا ہے۔ اس مہینے کے مخصوص دن سیاروں کی منفرد حرکات اور برجوں کی پوزیشنز کے باعث بعض شعبوں میں ترقی اور استحکام دیکھنے کو مل سکتا ہے، جبکہ کچھ دن ایسے بھی ہوں گے جہاں احتیاط برتنا ضروری ہوگا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کن دنوں میں کامیابی کے دروازے کھل سکتے ہیں اور کب محتاط رہنا بہتر ہوگا تو یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ ہم تفصیل سے ان 5 خاص دنوں کا جائزہ لیں گے جو آپ کے لیے زندگی کے مختلف پہلوؤں میں اہم ثابت ہو سکتے ہیں۔ مارچ 2025 کے ان 5 دنوں کی مزید گہرائی میں جا کر وضاحت کی جا رہی ہے تاکہ آپ کو ہر پہلو سے بہتر رہنمائی حاصل ہو۔ ہر دن کے سیاروں کی حرکت، ان کے اثرات، ممکنہ چیلنجز اور مواقع کو تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے۔ تو نمبر 1 جو دن ہے وہ ہے 14 مارچ جمعہ کا دن، تخلیقی کامیابی اور بہتر کمیونیکیشن کا دن۔ سیاروں کی پوزیشن سورج اور عطارد برج حوت میں داخل ہوں گے جس سے تخلیقی اور جذباتی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ چاند برج میزان میں ہوگا جو توازن، خوبصورتی اور سفارتی صلاحیتوں کو ابھارتا ہے۔ کیریئر اور کاروبار پر اثر، تخلیقی شعبے کے لیے بہترین دن۔ اگر آپ کا تعلق لکھنے، فلم میکنگ، ڈیزائن، میوزک یا کسی تخلیقی کام سے ہے تو یہ دن آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ نئے آئیڈیاز پر کام کرنے کا وقت، اگر آپ کوئی نیا پروجیکٹ یا بزنس آئیڈیا لانچ کرنا چاہتے ہیں تو دن اس پر غور کرنے کے لیے موزوں ہے۔ مواصلات میں بہتری، عطارد کی پوزیشن آپ کی گفتگو کو مزید متاثر کن بنا سکتی ہے، اس لیے بزنس میٹنگز اور نیٹ ورکنگ کے لیے اچھا وقت ہے۔ محبت اور دوستی پر اثر، رومانوی تعلقات میں قربت، آپ اور آپ کے پارٹنر کے درمیان گہرے جذبات اور ہم آہنگی پیدا ہو سکتی ہے۔ دوستی میں مضبوطی، یہ دن پرانی دوستیاں دوبارہ جوڑنے یا نئی دوستیوں کے آغاز کے لیے موزوں ہوگا۔ احتیاط، جذباتی فیصلے کرنے سے گریز کریں، خاص طور پر اگر وہ مالی یا کاروباری نوعیت کے ہوں گے۔ دوسرا دن جو ہوگا وہ ہے 17 مارچ پیر، مواصلات میں احتیاط کا دن۔ سیاروں کی پوزیشن عطارد کا غروب برج حوت میں ہوگا جس سے گفتگو میں رکاوٹیں اور غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ چاند برج عقرب میں ہوگا جو گہرے جذبات اور خفیہ معاملات کو اجاگر کرتا ہے۔ کیریئر اور کاروبار پر اثر، اہم فیصلے مؤخر کریں، اگر کوئی بڑی ڈیل، کانٹریکٹ سائن کرنا ہے تو اسے چند دنوں کے لیے مؤخر کر دینا بہتر ہوگا۔ ای میل اور کمیونیکیشن کی ڈبل چیکنگ، کسی بھی اہم دستاویز یا میٹنگ کے نوٹس کو اچھی طرح چیک کریں تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ محبت اور دوستی پر اثر، جذباتی تعلقات میں اتار چڑھاؤ، غلط فہمیوں کے امکانات زیادہ ہیں، لہٰذا اپنے الفاظ کا چناؤ محتاط انداز میں کریں۔ پرانی غلط فہمیاں دور کرنے کا وقت، اگر آپ کسی کے ساتھ ناراض ہیں تو آج اس معاملے کو سلجھانے کے لیے اچھا وقت ہو سکتا ہے۔ احتیاط، جلد بازی میں فیصلے نہ کریں، کاروباری یا ذاتی زندگی میں غیر ضروری بحث و مباحثہ کرنے سے گریز کریں۔ تیسرا جو دن ہوگا وہ ہوگا 22 مارچ اتوار کا دن، مالی استحکام اور ترقی کا دن۔ سیاروں کی پوزیشن چاند برج سور میں ہوگا جو زمین سے جڑے عملی اور مالی پہلوؤں کو تقویت دیتا ہے۔ زہرہ اور مریخ بھی مضبوط پوزیشن میں ہوں گے جو محبت اور کاروباری شراکت داری میں استحکام کا اشارہ دیتے ہیں۔ کیریئر اور کاروبار پر اثر، مالی فوائد کا دن، اگر آپ سرمایہ کاری کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یہ دن اچھے مالی فیصلے کرنے کے لیے مناسب ہیں۔ طویل مدتی منصوبوں کے لیے فائدہ مند، اگر آپ اپنے کاروبار یا کیریئر میں استحکام اور ترقی چاہتے ہیں تو اس دن کی گئی پلاننگ آپ کو طویل مدتی فائدہ دے سکتی ہے۔ محبت اور دوستی پر اثر، رشتوں میں مضبوطی، اگر آپ کا تعلق برج سور، سنبلہ یا جدی سے ہے تو آپ کے لیے یہ دن محبت کے معاملات میں بہت اچھا ثابت ہو سکتا ہے۔ دوستی میں پائیداری، اور کوئی پرانا دوست دوبارہ زندگی میں آ سکتا ہے یا کوئی نیا مضبوط تعلق بن سکتا ہے۔ احتیاط، جذباتی فیصلے کرنے سے گریز کریں، خاص طور پر مالی معاملات میں۔ ہمارا جو چوتھا دن ہوگا 29 مارچ اتوار، سورج گرہن اور غیر یقینی صورتحال کا دن۔ سیاروں کی پوزیشن، پہلا سورج گرہن برج حوت میں ہوگا جو جذباتی اور روحانی توانائی کو متاثر کر سکتا ہے، اور مشتری بھی برج حوت میں ہوں گے جو غیر یقینی صورتحال کو بڑھا سکتے ہیں۔ کیریئر اور کاروبار پر اثر، بڑے فیصلوں سے گریز کریں، سورج گرہن کے اثرات غیر متوقع ہو سکتے ہیں، اس لیے اس دن کوئی بڑا فیصلہ نہ کریں۔ موجودہ کام پر توجہ دیں، کوئی نیا پروجیکٹ شروع کرنے کی بجائے پرانے کاموں کو مکمل کرنے پر دھیان دیں۔ محبت اور دوستی پر اثر، جذباتی شدت، کچھ لوگ ماضی کی یادوں میں کھو سکتے ہیں یا تعلق میں الجھن محسوس کر سکتے ہیں، کسی بڑے تعلقاتی فیصلے سے گریز کریں۔ اگر آپ کوئی بڑا رشتہ ختم یا شروع کرنے کا سوچ رہے ہیں تو تھوڑا انتظار کریں۔ احتیاط، غیر ضروری جذباتی فیصلے نہ کریں، صحت پر توجہ دیں کیونکہ سورج گرہن کے دوران ذہنی دباؤ اور کمزوری محسوس ہو سکتی ہے۔ ہمارا 5واں دن جس میں آپ کو احتیاط یا اچھا فیصلہ کرنا ہوگا وہ ہے
31 मार्च पीर, रिश्तों में इस्तेहकाम और खुद एतमादी का दिन। सियारों की पोजीशन ज़हल बुर्ज होत में होगा जो नज़्म ज़ब्त और इस्तेहकाम का इशारा देता है। चांद बुर्ज सुल्तान में होगा जो जज्बाती हमआहंगी को फ़रोग देता है। कैरियर और कारोबार पर असर, काम में इस्तेहकाम, अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर लंबे अरसे से काम कर रहे हैं तो ये दिन मुस्बत पेशरफ्त का इशारा दे सकता है। नई शराकतदारियों के लिए अच्छा वक्त, अगर आप किसी के साथ कारोबारी मुआहदा करना चाहते हैं तो ये दिन मौजू हो सकता है। मोहब्बत और दोस्ती पर असर, रिश्ते में पुख्तगी, अगर आपका रिश्ता संजीदा मरहले में है तो ये दिन इस ताल्लुक को मजीद मुस्तहकम करने का है। फैमिली और करीबी दोस्तों के साथ वक्त गुजारने का बेहतरीन वक्त। एहतियात, अपने जज्बात को मुतवाज़न रखें, खास तौर पर अगर कोई पुरानी बात सामने आए जो आपको परेशान करे। ओवरऑल हमारा मजमूई नतीजा इन 5 दिनों के बारे में और मशवरा। 14, 22 और 31 मार्च मुस्बत दिन है। इन दिनों को नेम, वाक़े, मोहब्बत, कारोबार और दोस्ती में इस्तेहकाम के लिए इस्तेमाल करें। 17 और 29 मार्च में एहतियात जरूरी है। इस दौरान बड़े फैसले करने से गुरेज करें और जज्बात पर काबू रखें। अगर आप इन तरीकों के मुताबिक अपनी मनसूबाबंदी करें तो आप मार्च के महीने से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। ऐसे कौन से 5 बुरूज हैं जिनको एहतियात की जरूरत होगी, आइए देखते हैं माहे मार्च में। तो मार्च 2025 के इन मखसूस दिनों में कुछ बुरूज को खास तौर पर एहतियात बरतने की जरूरत होगी। सियारों की पोजीशन और इनकी हरकत के मुताबिक दर्जा झैल 5 बुरूज ऐसे हैं जिन्हें मुहतात रहना चाहिए क्योंकि इन्हें कैरियर, मोहब्बत, दोस्ती और कारोबार में चैलेंजेस या गैर मुतवक्के सूरत हाल का सामना हो सकता है। हमारा पहला बुर्ज है बुर्ज जोजा यानी जेमिनी। इसका दुरानिया होता है 21 मई तक 20 जून। एहतियाती दिन है इसके 17 मार्च और 29 मार्च। वजह अतारत की मनफी तवानाई और सूरज ग्रहण का असर, चैलेंजेस और एहतियाती तदाबीर। मवासलात के मसाइल, 17 मार्च को अतारत का गरूब बुर्ज होत में होगा जिससे जोजा अफराद के लिए गुफ्तगू और कम्युनिकेशन में मुश्किलात आ सकती हैं। दफ्तर या कारोबार में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, इसलिए किसी भी अहम ईमेल, मीटिंग या फैसला लेने से पहले अच्छी तरह गौर करें। सूरज ग्रहण का असर, 29 मार्च को सूरज ग्रहण बुर्ज होत में होगा जो ज़हनी दबाव, उलझन और गैर यकीनी कैफियत ला सकता है। इस दिन नए प्रोजेक्ट शुरू करने या बड़ा फैसला लेने से गुरेज करें। मोहब्बत और तल्लुकात में तनाव, इन दिनों में आपके करीबी तल्लुकात में गलतफहमियों के इम्कानात हैं, इसलिए हर बात को ज्यादा संजीदा लेने के बजाय सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें। हमारा दूसरा बुर्ज है बुर्ज सिंबला यानी विरगो। दुरानिया 23 अगस्त 22 सितंबर। इनके एहतियाती दिन है 14 मार्च, 17 मार्च और 29 मार्च। वजह अतारत और ज़हल की कमजोर पोजीशन, सूरज ग्रहण का असर, चैलेंजेस और एहतियाती तदाबीर। ज़हनी दबाव, अतारत बुर्ज होत में कमजोर होगा जो सिंबला अफराद के लिए ज़हनी दबाव, फैसलों में गैर यकीनी और खुद एतमादी में कमी का सबब बन सकता है। काम पर तवज्जो का फकदान, 14 मार्च को सूरज और अतारत की पोजीशन आपकी तवज्जो को बिखरा सकती है जिससे कैरियर और बिजनेस में मुश्किलात आ सकती हैं। इस वक्त अपनी हिकमत अमली वाज़ा रखें और तफसीलात पर ज्यादा ध्यान दें। मोहब्बत में उलझने, सूरज ग्रहण 29 मार्च को जज्बाती उतार चढ़ाव ला सकता है जिससे रोमानवी तल्लुकात में तनाव बढ़ सकता है। किसी भी बहस या इख्तिलाफ को तूल न दें और मामलात को तहम्मुल से हल करें। हमारा तीसरा बुर्ज है बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। 23 अक्टूबर ता 21 नवंबर। एहतियाती दिन 17 मार्च और 29 मार्च। वजह चांद की ताकतवर पोजीशन और सूरज ग्रहण की तमन्नाएं, चैलेंजेस और एहतियाती तदाबीर। जज्बाती शिद्दत, 17 मार्च को चांद बुर्ज अकरब में होगा जो आपके अंदरूनी जज्बात को मजीद शदीद कर सकता है। अगर आप किसी फैसले या तल्लुक में उलझन महसूस कर रहे हैं तो फौरी रद्द-ए-अमल देने की बजाय सब्र। कैरियर में रुकावटें, सूरज ग्रहण 29 मार्च को गैर मुतवक्के पेशेवराना मसाइल पैदा कर सकते हैं जैसे कि कोई डील मनसूख हो सकती है या बात क्लाइंट्स के साथ मसाइल हो सकते हैं। माली फैसलों में एहतियात, अगर आप किसी बड़ी सरमायाकारी या माली लेन देन का इरादा रखते हैं तो इसे अप्रैल तक मौखर करना बेहतर होगा। हमारा चौथा बुर्ज है बुर्ज कोष यानी सैजिटेरियस। 22 नवंबर तक 21 दिसंबर। दुरानिया एहतियाती दिन 14 मार्च तक 22 मार्च और 29 मार्च। वजह माली और जाती अदम इस्तेहकाम, सूरज ग्रहण का असर, चैलेंजेस और एहतियाती तदाबीर। माली मुश्किलात, 22 मार्च को चांद बुर्ज सूर में होगा जो माली मामलात के लिए खास अहम होगा। कोस अफराद को गैर जरूरी अखराजात से बचने की जरूरत है क्योंकि इस दिन माली नुकसानात या गैर मुतवक्के अखराजात का अमकान है। खानदानी या दोस्तों से इख्तलाफ, 14 मार्च को अतारत की पोजीशन मवासलात में मसाइल पैदा कर सकती है जिसकी वजह से घरेलू या दोस्तों के साथ बहस हो सकती है। सफर में एहतियात, अगर आप मार्च के आखिर में सफर का इरादा रखते हैं तो 29 मार्च को खास एहतियात करें क्योंकि सूरज ग्रहण गैर मुतवक्के तखीर और मुश्किलात ला सकता है। हमारा पांचवा बुर्ज है बुर्ज होत यानी पाइसिस। 19 फरवरी तक 20 मार्च। एहतियाती दिन 14 मार्च, 17 मार्च, 22 मार्च और 29 मार्च। वजह सूरज, अतारत, ज़हल और मुश्तरी की पोजीशन का असर, चैलेंजेस और एहतियाती तदाबीर। जाती और जज्बाती उलझने, बुर्ज होत में ज़हल और सूरज की मौजूदगी आपके लिए जज्बाती उलझने ला सकती है। इस दौरान अपने जज्बात पर काबू रखें और जल्दबाजी में फैसले न करें। कैरियर में गैर मुतवक्के रुकावटें, 14 और 17 मार्च को किसी नए प्रोजेक्ट या नौकरी की पेशकश पर जल्दी से दस्तखत न करें बल्कि पहले तमाम पहलुओं का जायजा लें। मोहब्बत में मुश्किल फैसले, 29 मार्च का सूरज ग्रहण आपके रिश्ते में गैर
गैर यकीनी कैफियत पैदा कर सकता है। अगर कोई फैसला करना जरूरी हो तो इसे अगले महीने तक मौखर कर दें। इन बुरूज को मशवरे। बुर्ज जोजा और जुमला को मवासलात में एहतियात बरतनी चाहिए, खासतौर पर 17 और 29 मार्च को। बुर्ज अकरब को जज्बाती इस्तेकाम पर काम करना होगा क्योंकि 17 मार्च इनके लिए ज्यादा हसासियत ला सकता है। नंबर 3, बुर्ज कोस को माली मामलात और सफर में एहतियात करनी चाहिए, खासतौर पर 22 और 29 मार्च को। बुर्ज हौद को कैरियर, मोहब्बत और जाती जिंदगी में मोहतात फैसले लेने की जरूरत होगी क्योंकि मार्च का महीना इनके लिए ज्यादा जज्बाती और चैलेंजिंग हो सकता है। अगर आपका बुर्ज इनमें शामिल है तो इन दिनों में ज्यादा मोहतात रहें, जल्दबाजी में फैसले ना करें और अपने जज्बात पर काबू रखें। अगर आप किसी बड़े कारोबारी, माली या रोमानवी फैसले के बारे में सोच रहे हैं तो इसे अप्रैल तक मुखर करना दानिशमंदी होगा। अब कुछ सवालात जो आप में से अक्सर लोगों के जहन में आ सकते हैं और उनके जवाब। सवाल नंबर 1, मार्च 2025 में कौन सा दिन कैरियर के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा? जवाब 14 मार्च। सूरज और तारत की बुर्ज हौद में मौजूदगी आपकी तख्लीकी सलाहियतों और कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ा सकती है। अगर आप नई जॉब के ख्वाहिशमंद हैं या किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो ये दिन आपके लिए कामयाबी का दरवाजा खोल सकता है। सवाल नंबर 2, मोहब्बत के रिश्ते में गहराई और मजबूती लाने के लिए बेहतरीन दिन कौन सा होगा? जवाब 31 मार्च। ज़हल की बुर्ज हौद में मौजूदगी रिश्तों में इस्तेहकाम और पुख्तगी लाने का इशारा देती है। अगर आप किसी खास शख्स के साथ अपना रिश्ता मजबूत करना चाहते हैं या रिश्ते में संजीदगी लाने का इरादा रखते हैं तो ये दिन आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। सवाल नंबर 3, कारोबारी अफराद के लिए माली इस्तेहकाम का सबसे अच्छा दिन कौन सा होगा? जवाब 22 मार्च। चांद बुर्ज सूर में होगा जो इस्तेहकाम और माली कामयाबी की अलामत है। अगर आप सरमायाकारी, नए बिजनेस पार्टनरशिप या किसी माली फैसले के बारे में सोच रहे हैं तो ये दिन आपको मुनाफा और इस्तेहकाम फराहम कर सकता है। सवाल नंबर 4, कौन सा दिन गैर मुतवक्के चैलेंजेस ला सकता है और हमें मुहतात रहने की जरूरत होगी? जवाब 29 मार्च। इस दिन सूरज ग्रहण होगा जो गैर यकीनी हालात, उलझन और जज्बाती उतार चढ़ाव का सबब बन सकता है। इस दिन कोई बड़ा फैसला लेने से गुरेज करें और सब्र से काम लें ताकि गैर मुतवक्के मसाइल से बच सकें। सवाल नंबर 5, दोस्ती और सोशल लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कौन सा दिन सबसे खास? जवाब 14 मार्च। अतारत की मुस्बत तवानाई लोगों को एक दूसरे के करीब लाने में मदद देगी। अगर आप पुराने दोस्तों से दोबारा राब्ता करना चाहते हैं या अपनी सोशल लाइफ को मजीद बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये दिन बहुत मुफीद साबित हो सकते हैं। प्यारे नाज़रीन, आपके ख्याल में मार्च का कौन सा दिन सबसे ज्यादा खुशकिस्मत साबित हो सकता है? कमेंट्स में जरूर बताएं। कमेंट्स में बताएं कि अगर आपको ये तज़किया पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और मजीद एस्ट्रोलॉजी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। याद रखें, ये ज़ायचा एक अमूमी रहनुमाई है, इसे रहनुमाई के तौर पर लें और अपनी ज़िंदगी के फैसले हमेशा अक्लमंदी और तदब्बुर के साथ करें। अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। बाकी गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है और वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। ये पेशगोइयाँ अमूमी है, इनका मकसद सिर्फ रहनुमाई देना है। इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो प्यारे नाज़रीन, UMB स्टॉकविट्स की वीडियोस देखने के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो आप हमारी इन वीडियोस को देखकर अच्छे कमेंट्स करते और इनसे अगर कोई फायदा उठाते हैं। तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को मुकम्मल देख के कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आपको मजीद दिलचस्प एस्ट्रोलॉजिकल अपडेट्स मिल सकें। आप सबका शुक्रिया। अल्लाह आपकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करे और आप सबको दुनिया जहां की खुशियों से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन।